everyone. Here is another video in the crash course of modern history. This is about Anglo-Mysore War. Okay, this is the continuation of Anglo-Mysore War series, जिसमें कि हमने फर्स्ट और सेकंड एंग्लो-माइसोर वॉर पढ़ लिया है, जिसमें हमने टीपू सुल्तान, हैदर अली, ट्रीटी ऑफ मद्रास और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में पढ़ा था. Now we are studying Anglo-Mysore War 3 and 4. As I told you that there have been 4 wars in this particular series. So before that I would like to highlight that price hike alert here that Unacademy has brought. It is basically about the discount that you can earn by using the code SIMPLEYT. Okay, जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइसेस में कुछ हाइक आने वाला है. तो अगर आप कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू शुड सब्सक्राइब इट नाउ एंड ऑल्सो यूज़ द कोड SIMPLEYT, दैट इज SIMPLEYT. With the help of this code you can get 10% extra off while getting the subscription on Unacademy. Also, Unacademy Aspire program is one such program that would help you to take the free mock test series, and it is for all the civil service aspirants all over the country. The paper would be based on prelims paper 1 like the GS paper, and it is held on 10th and 25th of every month. So all those who are scoring nice, who are scoring whose score would be under top 50, they can get the exciting prizes and scholarships from Unacademy. So this test is going to be held on 25th again at 10 a.m. So enroll for it now so that you could earn the exciting prizes. Unacademy brings you 3 different kinds of courses: bilingual, हिंदी and English. जो भी लोगों को हिंदी में तैयारी करनी है या हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए हिंदी के कोर्सेज हैं. उनके लिए सारे जितने भी मटेरियल होगा वो सब हिंदी में होगा. एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड वांट द मीडियम टू बी इन इंग्लिश, दे कैन गो फॉर इंग्लिश पैचेस. And all those who are comfortable in English as well as Hindi and they want the medium of instructions to be in English as well as in Hindi, वो हिंदी में भी सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में भी, तो उनके लिए bilingual courses हैं. Unacademy brings you unlimited benefits with just one subscription. Okay, you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on one platform. The coverage of your syllabus would be taken care by Unacademy itself, and there would be regular doubt clearing sessions and answer writing sessions. These sessions would help you to prepare well. Also, there would be live test series and the material would be provided in PDF as well as video formats. And through this, to guide through this entire process, you would get a personal mentor जो कि आपको आपके मिस्टेक्स बताएंगे एंड उनको रेक्टिफाई करने का तरीका बताएंगे. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर मेंटर. See, these are the benefits that you are getting when you go for the subscription on Unacademy. Okay, Unacademy Plus जो आपको खास चीज़ें देता है वो है structured batches with top educators. Okay, ऐसा नहीं है कि आपको कौन से एजुकेटर की क्लास करनी है या आप इसमें कन्फ्यूजन में रहें. इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें से आपको जो भी एजुकेटर पसंद है या फिर जिसके भी पढ़ाने का तरीका आपको आपके हिसाब से सही लगता है, यू कैन गो फॉर द बैचेस. ठीक है, जो जिनमें वो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. ओके, देयर वुड बी अ मेंटेन्ड टाइम टेबल. Batches would be in Hindi, English and bilingual as I told you. If you are the person who studies at the late night, then you can also opt for this late night as well as 2-year batches. Okay, 100% syllabus coverage, vast range of optionals, prelims test series with evaluation, then mains test series. See, prelims and mains both the test series would be there विद एवेल्यूएशन. ठीक है, आपको प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे दैट आप कहाँ तक हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड. Dedicated doubt clearing sessions, sectional quizzes, interview preparation. Okay, these are the things that you are going with this you are getting with this subscription.
Also, when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT. I am saying this again and again because this will fetch you 10% extra off, and it's never bad to get something like, you know, extra, or with the same quality you are getting this particular subscription with lesser price. Okay, so you should use the code SIMPLEYT when you are going for the subscription. Okay, so this is Unacademy's Champions Conclave. This is one such session that would like provide you with the tips and tricks from the ones who have already cracked this exam. उसमें भी जो सिविल सर्विस 2019 के टॉपर्स हैं, ये उनके तरफ से आया हुआ गाइडेंस, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, ये सब आपको इस कॉन्क्लेव में दिए जाएंगे. एंड these are T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज. ओके, दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चन की एक क्विज दी जाएगी जो कि आपको 20 मिनट में करके देनी है, एंड इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स. एंड ऑल्सो आपको एंड में टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसके बेसिस पर आप जज कर पाएंगे खुद की प्रिपरेशन को ऑन दिस डेली करंट अफेयर्स टॉपिक. So when you are going for the subscription, do click these links. These are the links to our channel on YouTube, Telegram and Facebook. So here we are starting with Third Anglo-Mysore War. Okay, so मैं उससे पहले आपको थोड़ा रिवाइंड में ले जाना चाहूँगी. लाइक फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली के बारे में पढ़ा था हमने. उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास पे ख़त्म हुआ था. वो ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास में हमने ये देखा था दैट बेसिकली इट वाज द एंड टू द वॉर. ओके, इट वाज द पीस अग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली. अब ऐसा हुआ था कि जो भी उन्होंने कॉन्कर किए थे एरियाज, रीजन्स, एक दूसरे के टेरिटरीज जो भी उन्होंने एनेक्स की थी एक दूसरे के, तो वो सारी रिस्टोर करनी थी. और सेकेंड पॉइंट उसमें ये था दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन if any other foreign power attacks their region. ठीक है, अगर कोई भी दूसरी फॉरेन पावर आके अटैक करती है उनके रीजन को तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ये ट्रीटी ऑफ मद्रास में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो जो फर्स्ट वॉर था वो 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था. फिर हमने सेकेंड जो वॉर पढ़ा वो सेकेंड वॉर था जब ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रेक की गई बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, जब मैसूर अटैक करने गया मराठास पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प नहीं की दिस हैदर अली की, बल्कि उन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी उसमें ये लिखा हुआ था दैट दे वुड हेल्प ईच अदर. लेकिन ये उन्होंने लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रोक दिस ट्रीटी. सो this made Hyder Ali very angry. Also they attacked the region where the region that was possessed by French and it was under Hyder's dominion. उन्होंने उस पे भी अटैक कर दिया. तो all these things angered Hyder Ali and he declared a war on East India Company in 1780. तो ये सेकेंड वॉर की बात हो गई. अब ये कब खत्म हुआ? 1780 से 1784 तक सेकेंड वॉर चला. उसमें 1782 में डेथ हो गई हैदर अली की. तो उसके डेथ के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ये वॉर को संभाला और 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये वॉर ख़त्म किया गया. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. ये जो इसका जो रीज़न है वो बेसिकली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ही है. ठीक है, तो अब देखिए जो पहली चीज़ है इसमें जो रीजंस में अगर मैं आपको बताऊं देन द फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूव्ड रिलेशंस विथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास. सी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ जो इंग्लिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे. फाइन. तो अब ऐसा था कि जो टीपू सुल्तान थे, he was very keen on improving the military resources. He was very keen on bettering the military resources. He wanted to modernize his army along the lines of European army. ठीक है, तो इसका जो एक मेजर रीजन, मतलब अगर हम देखें कि
जो मैसूर था वहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया गया, ठीक है। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया। हमने देखा कि जो फर्स्ट वॉर रॉकेट है वो भी मैसूर में ही यूज़ हुआ था टीपू सुल्तान के द्वारा। अब ये जो थर्ड एंग्लो वॉर है इसका जो मेजर रीज़न बोला जाता है वो बोला जाता है कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में ऐसा कहा गया था। तो टीपू सुल्तान ने ही रिफ्यूज टू फ्री द सोल्जर्स, ठीक है। एंड व्हेन दिस टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू फ्री द सोल्जर्स which was according to the treaty of Mangalore which was signed in 1784, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो दिस लेड टू बैटल। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को अबाइड नहीं किया था उन्होंने, जो प्रिजनर्स को कैप्चर कर रखा था उनको रिलीज़ नहीं किया था। सो दिस इज़ बेसिकली अ सिंपल बैकग्राउंड थ्रू विच यू कैन कीप द स्टोरी इन योर माइंड। 1789 टीपूज वॉर ऑन त्रावणकोर, ठीक है। 1789 में मैंने आपको बताया था दैट टीपू ही वॉज एन एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर। ही वॉज अनेक्सिंग द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया अदर देन हिज ओन टेरिटरी, ठीक है। उनकी टेरिटरी खुद होने के बाद भी वो बाकी पार्ट्स को अनेक्स कर रहे थे साउथ इंडिया में। सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ दिस रूलर एज थ्रेट, सो दे वांटेड टू क्रश टीपू सुल्तान। 1789 में जब टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पे अटैक किया, ही लेड अ वॉर ऑन त्रावणकोर, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने वहाँ पे कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टीपू, ठीक है। अब ये जो त्रावणकोर है ये अब ऐसी क्या मतलब व्हाट वाज द रीजन दैट व्हेन टीपू अटैक्ड ऑन त्रावणकोर कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टीपू? ये इसका रीजन, सी द बैक स्टोरी इज 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोयम्बतूर ले लिया था, ठीक है, जो कि पहले अंडर मैसूर, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैसूर। जब 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी में कोयम्बतूर लिया तो 1784 में टीपू ने मैंगलोर वापस ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, विद नीदर साइड इन अ पोजिशन टू विन द वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी, ठीक है। ये ट्रीटी पे ख़त्म हुआ। अब ऐसा है कि टीपू वॉज डिफीटेड जब ये वॉर कॉर्नवालिस ने टीपू पे मतलब टीपू व्हेन ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टीपू वॉज डिफीटेड इन दैट वॉर। ही हैड टू रिट्रीट हिज ट्रूप्स एंड टीपू हैड टू बाय पीस फॉर सेरिंगपतम, ठीक है। अब जो सेरिंगपतम है वो टीपू की कैपिटल है उस टाइम पे, जो मैसूर है उस पर वहाँ पे टीपू सुल्तान जहाँ पे रूल करते थे, तो उस टाइम पे जो सेरिंगपतम है वो टीपू सुल्तान की कैपिटल थी। तो उसके लिए उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया। ओके, सो Tipu was defeated in the first phase, as I told you. Forces had to retreat, and when East India Company advanced towards Seringapatam, Tipu Sultan had to buy peace. जो त्रावणकोर था, it was the friendly colony of East India Company, ठीक है। वो ब्रिटिश फ्रेंडली स्टेट था, इसीलिए वहाँ पे आर्मी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उन्होंने भी टीपू के अगेंस्ट बैटल फाइट किया। Now, what were the results of Third Anglo-Mysore War? The war ended with the Treaty of Seringapatam in 1792. ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम जो 1792 में साइन की गई थी। एज पर द ट्रीटी, अब ये ट्रीटी में था क्या, ट्रीटी में जो था वो ये था कि जो टीपू थे उनको उनके किंगडम का हाफ ऑफ द टेरिटरीज ही हैड टू गिव इट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब वो हार चुके थे वॉर में, तो ही हैड टू गिव हाफ ऑफ द टेरिटरीज ऑफ हिज किंगडम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनमें से कुछ एरियाज थे मालाबार, दिंडीगुल, कूर्ग, बारामैल, ठीक है। मालाबार अगर आप याद करें तो इट वॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर मैसूर कंट्रोल ऑल द प्रॉफिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली।
ओके, ही ऑल्सो हैड टू पे ₹3 crore एज वॉर इंडेमिनिटी टू द ब्रिटिश। जो वॉर इंडेमिनिटी है वो ये है कि हम फ्यूचर में आपसे कोई वॉर नहीं करेंगे, कोई बैटल नहीं करेंगे, आपको खतरा नहीं होगा, and you would be saved from other wars and battles that are forthcoming. Tipu also had to surrender two of his sons. I showed you the picture in which Tipu, like two of the Tipu's son, they were being carried by Lord Cornwallis as hostages. ठीक है, तो ये ही जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो इसी वॉर के दौरान दो बेटे जो टीपू सुल्तान के थे उनको ले लिया गया था एज हॉस्टेजेस कॉर्नवालिस के द्वारा. Till he paid the, see this is the picture that I was talking about. Cornwallis receiving the sons of Tipu Sultan as hostages, painted by Daniel Orne. Now we will study the fourth Anglo-Mysore War, and it took place in 1799. ठीक है, cause what were the we will come directly to the causes of war. The Treaty of Seringapatam failed to bring peace between Tipu and English. ठीक है, जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी उस ट्रीटी में जो ट्रीटी उन्होंने साइन की थी, द ट्रीटी इट कंटेन्ड द कॉन्टेंट दैट टीपू वुड सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द इंग्लिश. ठीक है, वो आधा अपना किंगडम दे देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को और 3 करोड़ रुपए भी देंगे एज वॉर इंडेमनिटी. और टीपू के दो सन को भी, बेटों को भी लेके गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये जो ट्रीटी हुई थी, दिस वॉज फेलिंग टू ब्रिंग पीस बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान. टीपू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली. मैंने आपको बोला था जो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम लेकर आए थे, टीपू he rejected that system. He refused to accept that system. He denied to enter into subsidiary alliance that was offered by Lord Wellesley at that time. Although after his death Mysore did enter this subsidiary alliance treaty, लेकिन उनके डेथ के बाद ही टीपू aligned with French which the British saw as a threat. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश यूरोपियन पावर थी, वो काफ़ी कंपटीशन में थी फ्रेंच के, क्योंकि दे वर इन कंपटीशन इटसेल्फ इन द मार्केट्स. लेकिन उसके भी अलावा जो फ्रेंच थे वो काफ़ी अच्छे अलाय थे टीपू सुल्तान के. तो जब व्हेन द अलायंस वाज फॉर्म्ड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड फ्रेंच, उस टाइम पे ब्रिटिश दिस सॉ दिस एज अ थ्रेट, तो इसीलिए दे लेड द वॉर. मैसूर अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स. ठीक है, मराठाज एंड निज़ाम अटैक्ड फ्रॉम नॉर्थ. ठीक है, मराठा और निज़ाम, उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठाज दे अटैक्ड टीपूज कैपिटल फ्रॉम द नॉर्थ. टीपूज ट्रूप्स आउट नंबर. ठीक है, तो जो टीपू के सोल्जर्स थे वो कम पड़ गए. द बैटल टुक प्लेस इन सेरिंगापतम, जो कि कैपिटल थी मैसूर की उस टाइम पे. टीपू डाइड वाइल डिफेंडिंग. ओके, ही डाइड वाइल डिफेंडिंग हिज ओन कैपिटल. So see this what were the results of last battle of Mysore. Tipu's territories were divided between the British and Nizam of Hyderabad. ठीक है, अब जो भी टेरिटरीज थी टीपू की वो ब्रिटिश और निज़ाम ऑफ हैदराबाद क्योंकि कर्नाटका के जस्ट साइड में ही है. ओके, तो जो उसी हैदराबाद में जितने भी प्लेसेस थे और मैसूर में जितने भी प्लेसेस थे वो सब कैप्चर कर लिए थे बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने. ठीक है, तो उनको आधा आधा एक दूसरे में दे डिस्ट्रीब्यूटेड द टेरिटरीज ऑफ टीपू सुल्तान. मैसूर एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट वाज प्लेस्ड एट द मैसूर कोर्ट. ठीक है, जो ब्रिटिश रेसिडेंट प्लेस करने का एक देयर वाज अ पॉलिसी जिसमें कि जो रेसिडेंट्स होते थे, ब्रिटिश रेसिडेंट्स थे, उनको जहाँ पे भी ब्रिटिश अपना रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे वहाँ पे प्लेस करते थे. और उनका काम बस इतना होता था कि जो भी वहाँ पे किंग है वो जितने भी डिसीजंस लेगा, जितने भी पॉलिसीज़ लेगा, जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है, वहाँ पे सब जगहों पर वो रेजिडेंट का ही हैज़ टू सी कि जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो भी इन्फ्लुएंसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. अगर वो इन्फ्लुएंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर जो भी डिसीजन ईस्ट इंडिया कंपनी लेके देती है वो किंग को, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता, देन द वॉर वाज लेड ऑन लाइक दैट.
Okay, so this was the work of resident to increase the power of East India Company in the region where the king was under East India Company's control. तो सब्सिडरी अलायंस में एंटर किया 1799 में, एंड फर्स्ट वन वाज दी 1798, हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में एंटर किया था. देन मैसूर ऑल्सो. The kingdom of Mysore renamed a princely state not directly under the British until 1947 when it chose to join the Indian Union. ठीक है, तो ये it was although under British East India Company, लेकिन वो सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस करते थे, वहाँ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे, वहाँ के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते थे, and they took all the decisions basically. And the king of Mysore, he was a nominal king only. ठीक है, although it remained princely state until it joined the Indian Union. So I guess this was all about the last battle of Mysore, that is the 4th Anglo-Mysore battle. ठीक है, जो कि 1799 में एंड हो गया था. सो दिस वॉज द सीरीज ऑफ एंग्लो-मैसूर वॉर. इस सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, हमने काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि कैसे जो साउथ इंडिया था उसका एनेक्सेशन कैसे हुआ. अब नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एंग्लो मराठा वॉर्स. ठीक है, तो ये जो एंग्लो मराठा, एंग्लो कार्नेटिक, एंग्लो मैसूर, ये सारे जो वॉर्स हैं, वी नीड टू स्टडी ऑल दीज वॉर्स. ओके, so I guess this was all about this Anglo series, and I hope you will like the video. Thank you.